Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial, and this is the last lecture of our chapter applications of biotechnology and its application. And today we are going to discuss about bioethical issues, biopatents and biopiracy, and we will be learning about certain controversies of biopatents as well. So the first topic would be bioethical issues, or simply let's call it ethical issues. See, what is the meaning of term ethics? In ethics, we used to set a certain standard which actually tell us that which thing is legitimate and which thing is not legitimate, or which thing is legal or which thing is not legal. For example, there are certain rules of a class, and a teacher used to set certain standard that you have to make notes, you have to listen very carefully, or school is making certain standard, and school is going to tell you that which thing you should do and which thing you should not do. That is what we call ethics. या फिर अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है, वो सब एथिक्स में आता है. तो जब हम इसको बायोलॉजिकल वर्ड के साथ पढ़ेंगे तो हम बायोएथिक्स कहेंगे. और बायोएथिक्स के रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ आते हैं कि भाई आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब यूज़ करते हो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हो, तो उसका क्या क्या अफेक्ट है ऑन आवर नेचर. कि भाई आपने किसी एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया तो इंटीग्रेटिव स्पीशीज़ डिस्टर्ब कर दिया आपने, या फिर ह्यूमन जीन एनिमल के दूसरे एनिमल के अंदर एंटर कर दिया, दूसरे एनिमल के जीन ह्यूमन के अंदर एंटर कर दिए, तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस ख़त्म कर दिया, या आप एनिमल को सफरिंग करा रहे हैं. ये सारे के सारे बायोएथिकल इश्यूज़ हो जाएंगे. तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि भाई ये इंडिया में कौन सेट करता है कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है, मतलब जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है वो मेनली उनको डिज़ाइन कौन करता है. So let us start. We will be having three different topics in today's lecture. First would be bioethical issues, ethical issues, ethical. पहले बता दो what is ethic. What is the meaning of term ethical, and then I will be telling you about the term bioethical. ये ethical issue होते क्या है. पहले ethical और ethics की बात कर लेते हैं. If I define the term ethics here, so as I am telling you, ethics is a set of standard. It include a set of standard by which a community regulates its behavior and decide as to which activity is legitimate, which activity is legalized and which is not. So ethics का definition जाएगा, it includes a set of standards by which a community decide which activities are legitimate or legalized, should be done, legitimate, and which are not. तो सिंपली अगर एथिक्स को मैं डिफाइन करूँ तो एथिक्स किसी भी कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए वो स्टैंडर्ड होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए. तो जब हम बायोलॉजिकल वर्ड की बात करेंगे, जब हम वर्ड बायोएथिक्स को डिफाइन करेंगे, तो बायोएथिक्स का डेफिनेशन होगा अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड which may be used to regulate over activities in relation to the biological world. But therefore, if I define here bioethics, bioethics are simply a set of standard which help us, or which may be used to regulate, a set of standard that may be used to regulate different type of activities when they are concerned with biological world, to regulate over certain activities in relation to the biological world, to regulate over certain activities in relation to
in relation to biological word, biological word. तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है that set of standard which used to legitimate which thing is right or not or which thing is allowed or not in relation to biological word, उन set of standard के लिए क्या word use करते हैं? Answer to that question would be bioethics. नाउ यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और बिना उनको रेगुलेट किए, क्योंकि हम उनमें हमेशा मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किए जा रहे हैं, और अगर आप रेगुलेशन नहीं कर रहे हैं तो जो मैनिपुलेशन ऑफ जीन मैनिपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है बाय ह्यूमन बीइंग, दैट कैन नॉट गो एनी फर्दर. आई मीन टू से वी ह्यूमंस फॉर आवर बेनिफिट और फॉर आवर यूज़ अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करते जा रहे हैं. तो अगर उसमें रेगुलेशन नहीं होगा तो उसका जो भी आपका फ्यूचर रिजल्ट्स होंगे दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल. आपने अभी पढ़ोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, या आपने शायद पढ़ भी लिया होगा, या फिर आपने क्लोनिंग के बारे में सुना होगा. क्लोनिंग वगैरह क्यों गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था? बिकॉज इथिकल इश्यूज आने शुरू हो गए थे, राइट. तो जितने भी आपके ह्यूमन नीड के लिए जितने भी जेनेटिक मैनिपुलेशन होते हैं, ऑल दोज मैनिपुलेशन रिक्वायर अ रेगुलेशन, एंड विदाउट एनी रेगुलेशन दे कैन नॉट गो एनी फर्दर. इज दैट क्लियर? फिर आई विल से कि कुछ इथिकल स्टैंडर्ड हैं जिनको आपको इवेलुएट करने की ज़रूरत है. आपने वर्ड सुना होगा मॉरलिटी. तो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की मॉरलिटी की अगर बात करें, मॉरलिटी को मेंटेन करने के लिए आपके जितने भी स्टैंडर्ड है उनका इवेल्युएशन ज़रूरी है. अब उनको इवेल्युएट करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? शायद उनको इवेल्युएट करने के बाद जितना भी हम हार्म कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो कंट्रोल कर सके. या मैं कहूँगा कि देयर इज ए स्टेटमेंट जिसको कहते हैं डेट गोइंग बियॉन्ड द मॉरलिटी, कि वो होता ना कि मॉरलिटी वगैरह को पीछे छोड़ के अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ करते रहें. तो अगर रेगुलेशन आ गया तो शायद मॉरलिटी को क्रॉस न किया जाए. ठीक है, जितनी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ऐसी चीज़ों की, वो भले ही बहुत ज़रूरी है, पर उनको टाइम टू टाइम चेक करना या उनको टाइम टू टाइम रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि जितनी भी एथिकल स्टैंडर्ड है दे आर रिक्वायर्ड टू एवलुएट द मॉरलिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़. इज दैट क्लियर अप टू हियर? नाउ आपने एथिक्स के बारे में पढ़ लिया, बायोएथिक्स के बारे में पढ़ लिया और उनका रेगुलेशन के बारे में पढ़ लिया. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद हो सकता है आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो आपको मिले ही ना, और आपके जो रिजल्ट से बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं. वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिले हैं ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेन जीन, वो आपके इकोसिस्टम के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं. ठीक है, तो उन अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था टू कंट्रोल अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स. देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन विच वाज सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. टू कंट्रोल अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, रिमेंबर GEAC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है. इंडियन गवर्नमेंट सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन. ये कुछ ऐसा है कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस है जो ये लेजिटिमेट करता है कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए. द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसका ना फुल फॉर्म पूछ लिया गया है 2 बार वो भी, कि GEAC स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया set up an organization with the name Genetic Engineering Approval Committee, which will make decision regarding the validity of GM research, which will make decision regarding the वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि वो वैलिड है या नहीं है. ये नहीं कि उसकी लेंथ की बात करें कि वो एक्सपायर हो जाएगा.
regarding the validity of a genetic modification, कि आप जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो लेजिटिमेट है या नहीं है, या वो करना वैलिड है या इनवैलिड है। तो इंडियन गवर्नमेंट सेटअप एन कमिटी, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करती है, कोई डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, जितना भी जीएम क्रॉप के अंदर रिसर्च होता है उसकी वैलिडिटी, और साथ ही जितने भी सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं, अगर ये सेफ़ है या नहीं है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड सेफ्टी, कि भाई अगर आपने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर लिया है, वो ऐसा तो नहीं इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है, या ऐसा तो नहीं है वो आपके जितने भी एनिमल्स वगैरह उनको हार्म करेगा, या जो भी वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रांसजेनिक फूड वगैरह होते हैं तो वो अक्सर हार्म कर देते हैं आपको। अगर आपने डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी खा रहे हो तो हो सकता है आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज है उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाए। तो सेफ्टी एज वेल एज जो वैलिडिटी है कि क्या ये वैलिड है या नहीं, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा कमेटी है, आंसर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विल मेक डिसीजन regarding the validity of genetic modification and the safety of introducing a genetically modified organism for public services. So regarding the validity of genetic modification and safety of introducing कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कब अप्रूव होगा, जब GAC अप्रूव करेगा। आ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज़। तो समझ में आ गया बायोएथिक्स क्या होता है बच्चों। अभी बायोएथिकल इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। बायोएथिक्स का मतलब ये हुआ कि वो स्टैंडर्ड जो रेगुलेट करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड, और उन स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका नाम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो डिसाइड कर देती है कि ये डिसाइड करती है कि वो जो भी आप मॉडिफिकेशन कर दे वो वैलिड है, इनवैलिड है, या वो सेफ भी है पब्लिक यूज़ के लिए। नाउ ये तो हो गया बायोएथिक्स का डेफिनेशन और उस कमेटी के बारे में जो बायोएथिक्स सेट करती है। व्हाट आर द मेजर बायोएथिकल कंसर्न, इसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट आर द मेजर बायोएथिकल कंसर्न, जिनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बायोएथिकल इश्यूज़। जब भी रिसर्च में कोई भी चीज़ इलीगल होती है तो उसको नाम दिया जाता है कि भाई इसके ऊपर बायोएथिकल इश्यूज़ आ गए हैं। फॉर एग्जांपल क्लोनिंग क्यों बंद हुआ है, क्लोनिंग क्यों अलाउ नहीं है, रीज़न बीइंग इज बायोएथिकल इश्यूज़। सो कंसर्न ऑफ बायोएथिक्स, जितने भी आपके पास बायोएथिकल रिसर्च है, जो भी बायोएथिक्स बायोटेक्नोलॉजी है, उसके क्या क्या मेजर कंसर्न होते हैं। सबसे पहला कंसर्न तो बेटा यही होता है कि जब आप एनिमल को यूज़ कर रहे हो इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो एनिमल्स को ग्रेटर सफरिंग होती है, ग्रेटर सफरिंग टू एनिमल्स व्हेन यू हैव बीन यूजिंग देम फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो पहला कंसर्न हो गया ग्रेटर सफरिंग टू एनिमल्स का। इट मेक्स अ सेंस। फॉर एग्जाम्पल किसी वैक्सीन को पढ़ने के लिए thousands of animal they have been killed, और thousands of animal एक्सपेरिमेंटल ड्रग है तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जब आप एनिमल को यूज़ कर रहे हो तो उनके ऊपर ग्रेटर सफरिंग है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब आप एनिमल को यूज़ कर रहे हो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोटीन को बनाने के लिए, तो वर्चुअली आपने उसको कन्वर्ट कर दिया टू द स्टेटस ऑफ फैक्ट्री। व्हेन एनिमल्स आर यूज्ड for production of a pharmaceutical protein, तो वर्चुअली आपने उसको कन्वर्ट कर दिया एज ए फैक्ट्री। तो वर्चुअली इट इज कन्वर्टेड एज आप फैक्ट्री, या उस एनिमल को एज ए फैक्ट्री का स्टेटस दे दिया आपने, जो ठीक नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फ़ायदे के लिए एक फैक्ट्री बना देना वो सरासर गलत है। ठीक है, आई आल्सो डू एग्री।
फाइन, इससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो ह्यूमन रेस के लिए ठीक है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म और अदर एनिमल्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम। तो ग्रेटर सफरिंग है, आपने वर्चुअली उनको फैक्ट्री बना दिया है। जब आप अलग अलग जीन एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज़ है उसका वायलेशन हो जाता है। थर्ड पॉइंट शुड बी वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज़। कल आपने पढ़े थे कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जाम्पल। तो फिशेज़ की जो जीन है वो मंकी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी, नॉट फिशेज, जेलीफिश का जो जीन है, जो एक नाइडेरियन है उसका जीन एक मैमल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, हो गया ना इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज़ फेल। तो वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज़ इज़ देयर एज जीन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अदर स्पीशीज़। तो वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज़, स्टेटस ऑफ ए फैक्ट्री एंड ग्रेटर सफरिंग ऑफ एनिमल, 3 मेजर फैक्टर, इट मेक्स ए सेंस। उसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूशन, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही है, ऑफ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस। सही, ये कैसे डाइल्यूट होता है इसके बारे में सुन लो। जब आप एक ह्यूमन जीन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और एनिमल में, या ह्यूमन के अंदर दूसरे एनिमल के जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस है वो डाइल्यूट हो गया है। तो पहला हो गया बेटा ग्रेटर सफरिंग, दूसरा हो गया दे हैव बीन वर्चुअली यूज एज ए फैक्ट्री, तीसरा हो गया इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज़, चौथा हो गया डाइल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस ड्यू टू दैट ट्रांसफर ऑफ जीन्स, दैट ह्यूमन जीन्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू अदर स्पीशीज़ एंड वाइस वर्सा। देन नेक्स्ट अगर बात करूँ, ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक शर्म वाली बात है फॉर लिविंग बींग्स, क्योंकि ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग एनिमल को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ग्रेटर सफरिंग के साथ साथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन देयर इज एक्सप्लोशन ऑफ द एनिमल्स, फॉर इट्स ए बायोथिकल इशू, राइट। बेनिफिट ऑफ ह्यूमन देयर इज exploitation of other animals. 95% of the transgenic animal are mice, despite of the fact they have been studied as a model of disease and so on, but still आप उनको exploit तो कर ही रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी आपके पास ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ अनचाहे कुछ अनजाने इन्वायरमेंटल रिस्क को प्रोड्यूस करते हैं। I mean to say there is a risk to biodiversity by the production of certain genetically modified organism. So certain unseen risk has been produced by the formation of genetically modified organism. तो जो biotechnology है it may pose, biotechnology may pose unseen risk to environment. There could be a loss of biodiversity in here, there could be a loss of biodiversity here. तो मेनली जब हम बायोथिकल इश्यूज की बात करते हैं तो ग्रेटर सफरिंग टू एनिमल, स्टेटस ऑफ ए फैक्ट्री, इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज, डाइल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस, एक्सप्लोइटेशन ऑफ द एनिमल फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन एंड environmental risk, or there is a loss of biodiversity is at the risk. ये 5-6 आप जो बायोथिकल इश्यूज है वो याद रखेंगे। तो बच्चों एथिक्स क्या होता है? एथिक्स वो स्टैंडर्ड होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कौन सी एक्टिविटी लेजिटिमेट है, कौन सी नहीं है। जब हम इनको बायोलॉजिकल वर्ड के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो उनको बायोथिकल इश्यूज़ कहते हैं। जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, और उस रेगुलेशन के लिए आपके पास एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। और वो बताती है कि भाई सेफ्टी कंसर्न क्या है और किसी भी रिसर्च का वैलिडिटी है या नहीं है। और लास्ट में दे आर सर्टेन इश्यूज़, और ये बायोथिकल इश्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो ये पहला टॉपिक हो गया आज का, डैट इज़ बायोएथिक्स एंड बायोथिकल इश्यूज़। आई गेस आई मेक ए वेरी क्लियर कंसेप्ट टू एवरीबडी। नेक्स्ट फिर बात आती है पेटेंट की। व्हाट इज़ पेटेंट एंड व्हाट आर बायो पेटेंट्स। पेटेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस किस चीज़ का पेटेंट होता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। पेटेंट कुछ ऐसा है कि आपने
एक नया पेन खरीदा है और वो पेन आपसे बिलोंग करता है, आप उसके मालिक हैं, तो उसको हम एज ए पेटेंट कह देंगे। माने किसी भी चीज़ का जो ऑनर होता है उसके पास कुछ राइट्स होते हैं, दे आर सर्टेन राइट्स विच आर रिजर्व टू दैट ऑनर, और उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेटेंट। और जब बायोलॉजिकल वर्ड के लिए यूज़ करेंगे इस चीज़ को तो बायो पेटेंट कह देंगे। तो पहले पेटेंट का डेफिनेशन बता देता हूँ, पेटेंट एंड बायो पेटेंट। तो पहले पेटेंट को डिफाइन कर दूंगा मैं कि अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स क्या होते हैं, और बाद में बायो पेटेंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स which has been granted by a state or national government to the inventor, a set of exclusive rights granted by the state or national government, state or national government to the inventor or assignee, to the inventor or assignee। तो जो भी उसका इन्वेंटर है या जो भी उसका मालिक है जिसको असाइंड है, उसके पास देयर सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स, कुछ हक होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट पास करती हैं फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर के लिए उसका है, फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर टू ए पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, इन्वेंटर असाइनी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम in exchange for public disclosure, in exchange for public disclosure। आप बाइक खरीदते हो तो उसको अपने नाम करानी पड़ती है, आप कार ले रहे हो उसको अपनी नाम करानी पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्राइवेट है, बहुत ही सीक्रेट है, ये पब्लिकली डिस्क्लोज़ किया जाता है। तो नेशनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिकली डिस्क्लोज कर देती है कि इस चीज़ के जितने भी राइट्स हैं दे आर ग्रांटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेटेंट, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेटेंट। अगर इन कंटेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड बात करेंगे तो वर्ड यूज़ कर लेंगे बायो पेटेंट। जब आप सेल लाइन्स की बात करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट होंगे तो वर्ड यूज़ कर लेंगे हम बायो पेटेंट। अब बायो पेटेंट के लिए क्या 3 कंडीशंस फुलफिल करनी ज़रूरी होती है। There are 3 criterias for getting a patent. 3 criterias यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है for getting a patent। आप अगर किसी चीज़ को पर अपना हक जताना चाहते हैं कि मेरा एक नया रिसर्च है, तो आपको 3 क्राइटेरिया को तो फुलफिल करना होगा। सबसे पहले ये कोई चीज़ नहीं है, दैट क्राइटेरिया वुड बी नॉवेलिटी। सेकेंड, नॉन ऑब्वियसनेस, अभी मैं बताऊंगा ये क्या होती है, ऐसा नहीं आप चांद तारा तोड़ के कुछ ला के खड़ा कर दे वहाँ पर। और थर्ड, उस यूटिलिटी, किसी काम की भी है या नहीं है। तो देयर आर 3 क्राइटेरियाज विच शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू गेट अ पेटेंट। फर्स्ट इज नॉवेलिटी, सेकेंड इज नॉन ऑब्वियसनेस एंड थर्ड इज यूटिलिटी। नॉन ऑब्वियसनेस सबसे कन्फ्यूजिंग रहता है, यहीं पे गलत करते हैं आज, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले नॉवेलिटी की बात करते हैं। नॉवेलिटी का मतलब होता है कुछ नया, तो जो आपने इनोवेशन किया है वो कुछ नया होता है। इट शुड बी समथिंग न्यू, इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ प्रायर आर्ट और एग्जिस्टिंग नॉलेज। नॉवेलिटी का मतलब हुआ इनोवेशन मस्ट बी समथिंग न्यू, it cannot be a part of prior art or knowledge, it cannot be a part of prior art or knowledge। जिस कंपनी के नाम पैरासीटामोल का पेटेंट है, कल आप पैरासीटामोल दूसरे ड्रग में ऐड करके उसका पेटेंट लेने मत पहुंच जाना, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। तो नॉवेलिटी इज फर्स्ट वन। अब नॉन ऑब्वियसनेस को सुनो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ एकदम से नया ऐसा इन्वेंट कर दिया जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं था। कि नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब होता है इट मे नॉट बी डॉक्यूमेंटेड,
भले ही ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पर लोग बाग इसके बारे में जानते थे। लोग बाग जानते थे कि ऐसी कोई चीज़ होती है, हाँ किसी ने पेटेंट नहीं कराया हुआ था। इसका मतलब होता है नॉन ऑब्वियसनेस। तो नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब हुआ इट मे नॉट बी डॉक्यूमेंटेड बट अदरवाइज इट इज़ वेल नोन। मे नॉट बी documented but otherwise it is well known। ये नॉन ऑब्वियसनेस हो गई। और यूटिलिटी के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इट शुड बी हैविंग ए पर्टिकुलर यूज़ फॉर ह्यूमन बीइंग, तो कुछ फ़ायदे की चीज़ें तभी बायो पेटेंट मिलेगा। शुड हैव a particular use for human beings। तो पेटेंट के लिए बच्चों आपको तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करने की जरूरत होती है। जो पहला क्राइटेरिया डेट इज नोवेलिटी, जो सेकंड क्राइटेरिया डेट इज नॉन ऑब्वियसनेस, और जो थर्ड क्राइटेरिया डेट इज यूटिलिटी। पेटेंट कहाँ की चीज़ों के लिए मिलता है? कल ऐसा नहीं है आपने राइटिंग करना शुरू किया, कुछ लिख रहे हैं और एक नया सा अल्फ़ाबेट बना दे और पहुंच जाए कि ये अल्फ़ाबेट पे बस मेरा पेटेंट हो। नो, आपने कोई आंसर की लिखा और वो आंसर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसकी कोई ऑब्वियसनेस ही नहीं है। नोवेलिटी तो चलो उसके अंदर है बट ऑब्वियसनेस नहीं है और यूटिलिटी भी नहीं है, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो पेटेंट्स आर ग्रांटेड फॉर सर्टेन थिंग्स। उनका एक लिस्ट बना लेते हैं। पेटेंट्स आर ग्रांटेड फॉर बायो पेटेंट्स का बताऊं या पेटेंट्स का बताऊं? अगर आपके पास कोई एक इन्वेंशन है या कोई एक प्रोडक्ट है तो आप पेटेंट ले सकते हैं। यू कैन गेट इट फॉर अ इन्वेंशन और अ प्रोडक्ट which is having novelty, which is having non-obviousness and which is having utility। अगर आपने अर्लियर इन्वेंशन में कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो उस इम्प्रूव्ड वर्जन का भी आप पेटेंट ले सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द प्रीवियस इन्वेंशन, it is liable, it is allowed to get patent, but that should be having certain utility and certain logic there। अगर आपने कोई एक नया प्रोसेस, कोई एक नया मेथड इन्वेंट किया है फॉर जनरेटिंग ए प्रोडक्ट, आप उसका पेटेंट करा सकते हैं। प्रोसेस फॉर जनरेटिंग अ प्रोडक्ट। तो बच्चों आप किसी इन्वेंशन या किसी प्रोडक्ट का पेटेंट करा सकते हैं। प्रीवियस इन्वेंशन में आपने अच्छा सा कोई लॉजिकल इम्प्रूवमेंट किया है तो उसका पेटेंट करा सकते हैं। आपने कोई मेथडोलॉजी ट्राई किया है जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट का तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं। या आपने कोई एक डिज़ाइन या कंसेप्ट बनाया है, यू हैव मेड अ डिज़ाइन और यू हैव क्रिएटेड अ कंसेप्ट, यू कैन गेट पेटेंटेड। तो दे आर सर्टेन थिंग्स विच गेट पेटेंटेड। जो मेजर है वो चार याद रख लेना। कोई इन्वेंशन, प्रोडक्ट, प्रीवियस के अंदर इम्प्रूवमेंट, जनरेशन और मेथोलॉजी का पेटेंट करा लोगे या एक डिज़ाइन का पेटेंट करा लोगे। इनिशियली शुरू में जो पेटेंट ग्रांट किए जाते थे वो इंडस्ट्रियल इन्वेंशन के लिए ही किए जाते थे, पर आजकल जो पेटेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज़ के लिए, जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं उनके लिए भी पेटेंट मिलते हैं, या उन बायोलॉजिकल एंटिटी से जो भी मॉलिक्यूल ड्राइव होते हैं उनके लिए भी पेटेंट मिलते हैं। तो वो पेटेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं या बायोलॉजिकल वर्ड के लिए होते हैं उनको बोलते हैं बायो पेटेंट। सो व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि पहले अर्लियर पेटेंट जितने होते थे वो इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए होते थे, पर अभी आप जितनी भी बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती हैं या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी आप पेटेंट ले सकते हो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए भी पेटेंट ले सकते हो। और ऐसे पेटेंट को बोलते हैं बायो पेटेंट। तो व्हेन पेटेंटिंग इज डन इन कंटेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड व्हाट वी कॉल दैट बायो पेटेंट। अब सवाल आता है ये पेटेंट देता कौन है, हम उनसे जाके ले लेंगे। कमिटी, अगर मैं बात करूँ पेटेंट अप्रूवल जो कमिटीज़ हैं वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ USA, you can take the example of Japan and even the members of European Union,
they are the one which are awarding bio patent. So industrialized country, let me use some different color here, red. Industrialized countries कौन कौन से आते हैं इसमें? 3 मेजर हैं, यूएस से हैं, जापान है, और वो कंट्री जो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. दीज आर द वन विच अवार्ड पेटेंट्स. तो अगर आपने कोई रिसर्च किया है and this is like fulfilling all the criterias, you have to apply for a patent in these organization. Either it is from USA, it is from Japan, or they are from the members of European Union. तो बच्चों आपको समझ में आया पेटेंट काहे के लिए ग्रांट करता है, पेटेंट कौन ग्रांट कराते हैं, राइट. अब पेटेंट के साथ में एक वर्ड यूज किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल जो वर्ड है वो निकाला गया फ्रॉम द माइंड. तो आप अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दें जो आपके माइंड का रिजल्ट है या जो आपके माइंड का इन्वेंशन है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आगे चल के ना आप IPR ही पढ़ोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपने अपने ब्रेन की हेल्प से कुछ नया बनाया है. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये जो टर्म है ये रेफर करता है टू ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ क्रिएशन विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर माइंड. क्रिएशन ऑफ माइंड, वहीं से वर्ड आया इंटेलेक्चुअल. तो एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रोडक्ट जो क्रिएशन फ्रॉम माइंड है, उसके लिए अगर आपको एक सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट चाहिए, उसके लिए अगर सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट चाहिए तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इसको IPR भी कहते हैं, तो व्हाट आर IPR? दोज एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट्स विच हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट विच आर द क्रिएशन ऑफ माइंड. यू कैन गेट ए IPR फॉर म्यूजिक रिदम, you can get a IPR for a literature, even you can get a IPR for some artistic work. आपने कोई अच्छा सा पेंटिंग ही बना दिया है तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल सकता है. आपने कुछ नए अल्फाज इन्वेंट किए हैं, दे आर सर्टेन वर्ड, फॉर सर्टेन वर्ड्स यू कैन गेट एन IPR. इवन फॉर सर्टेन फ्रेजेस, कहते हैं ना कि ये राहत इंदौरी की लाइन है, ये कुमार विश्वास की लाइन है, तो दे माइट बी हैविंग सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर दीज फ्रेजेस. Even for a particular design and for a particular symbol, you might be having certain IPR, right? पर हमें इससे ज़्यादा अभी ये डिस्कस नहीं करना क्योंकि कॉमन पेटेंट की बात कर रहे हैं हम तो बायो पेटेंट पढ़ रहे हैं. तो सर कुछ बायोलॉजिकल वर्ड का बताओ. आजकल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो किस किस चीज़ के लिए ग्रांट किए जा रहे हैं? एक ट्रेडमार्क के लिए ग्रांट किया जा सकता है, कॉपीराइट के लिए ग्रांट किया जा सकता है, जो ट्रेड सीक्रेट्स है उनके लिए ग्रांट किया जा सकता है. इवन आपके पास जो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसके लिए ग्रांट किया जा सकता है, या एक कंप्लीट पेटेंट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांट किया जा सकता है. तो अगर आपसे पूछा जाता है डेट कॉमन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होंगे, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ IPR, तो मैं कहूँगा कॉपीराइट. इवन पेटेंट इज़ अ टाइप ऑफ IPR. आपका जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसके लिए IPR मिल जाएगा आपको, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट के सामने लिखा हुआ ऑल राइट्स रिजर्व्ड, तो वो एक पेटेंट वाली ही चीज़ हो गई. या अगर आपने कोई ट्रेडमार्क बनाया है तो वो मिल जाएगा. आजकल अगर आप किसी का म्यूज़िक यूज़ कर लेते हैं, किसी का लोगो यूज़ कर लेते हैं, तो इवन यूट्यूब भी आपकी वीडियो के ऊपर क्लेम कर लेता है कि यू हैव बीन वायलेटिंग द कॉपीराइट्स, जो भी उनके नॉर्म्स वगैरह हैं. तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कॉपीराइट, इन सब ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है कि इसको ट्रेडमार्क बिलोंग हो गया, इसको कॉपीराइट बिलोंग हो गया. खैर ये डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है. तो बच्चों बायो पेटेंट क्या होता है ये क्लियर हुआ. बायो पेटेंट का मतलब हुआ कि सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट आपने ग्रांट कर दिए टू इन्वेंटर और असाइनी. वो 3 याद रख लेना क्राइटेरिया. फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर नॉवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज योर यूटिलिटी. ठीक है. अब पेटेंट्स के बारे में एक चीज़ सुनो. आजकल लोगों में ना बड़ा गुस्सा है इन पेटेंट को लेकर. क्यों? क्योंकि कुछ कंपनीज क्या कर रही हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट के लिए पेटेंट करा लेती हैं
या ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट करा लेती हैं जो जेनेटिक मटेरियल यूज़ करता है, जो प्लांट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने बायोलॉजिकल रिसोर्स, प्लांट या जेनेटिक मटेरियल के ऊपर पेटेंट करा लिया तो पब्लिक को ना इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है। क्यों गुस्सा है सर, ये भी बता दो। रीज़न ये है कि कोई चीज़ ना आप बड़े सालों से जानते हो। फॉर एग्जांपल हमारे घर में नीम का पेड़ बड़े सालों से, और हमें पता है उसके अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टी होती है। ये हल्दी वगैरह तो हम बड़े सालों से, एंशियंट टाइम से जानते आ रहे हैं, हमारे अलग अलग किताबों में उनका जिक्र है, हमें पता है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। अगर आप उन्हीं को पेटेंट करा लोगे तो लोगों के अंदर गुस्सा ही आ जाएगा। या कोई ऐसी क्रॉप जो आप एंशियंट टाइम से हम लोग खाते आ रहे हैं, एक मैं राइस का भी एग्जांपल दूंगा आपको, तो अगर कोई अमेरिकन कंपनी या कोई बाहर की कंपनी राइस को पेटेंट करा लेती है तो ऑब्वियसली गुस्सा आना ही है। तो दे इज़ रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ये एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन है कहीं पर कि दे इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर इन द पीपल ड्यू टू द रीज़न कि कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, प्लांट और के जेनेटिक मटेरियल के लिए, या जो भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पेटेंट कराए जा रहे हैं, वो ऐसे एनिमल जिनको हम बड़े सालों से जानते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम घर वगैरह में क्या करते हैं, हम तुलसी का पेड़ लगा लेते हैं, हमें पता है उसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। तो अगर तुलसी के उन फ़ायदों के ऊपर कोई पेटेंट करा लेते हैं तो पब्लिक को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। या वो तो हमारा इंडिजियस सिस्टम है, वो तो हमारा घरेलू मसला है भाई। हमारे जो इंडिया के लोग हैं उसको बड़े सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ टेकिंग दैट पेटेंट, राइट। अब यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा राइस के बारे में। जो राइस होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है, और अगर हम राइस की बात करें तो हज़ारों सालों से हमारे अलग अलग टेक्स्ट में, हमारी हिस्ट्री के अंदर जो एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री है उसमें राइस का जिक्र हुआ है। राइस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर ग्रोइंग एंगल में। देखो इंडिया के अंदर अगर मैं राइस की वैरायटीज़ आपको बताऊं तो तकरीबन 2 लाख अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। मैं बासमती नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ राइस के बारे में बता रहा हूँ। और जो बासमती होती है उसकी 27 ऐसी वैरायटीज़ है जो वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो अगर कोई सी कंपनी बासमती की सेल लाइन को पेटेंट करा लेती है तो टैक्स तो आपको भी देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एंगर आना चाहिए, पब्लिक के अंदर एंगर आना चाहिए। तो एक राइस का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि जो राइस है उसको हम एशियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री में 1000 ऑफ ईयर से जानते हैं। तकरीबन कितनी एस्टिमेटेड वैरायटीज़ होती हैं? एस्टिमेटेड वैरायटीज़ विच आर फाउंड इन इंडिया ऑफ राइस, दे आर अबाउट 200,000। तो राइस की जो एस्टिमेटेड वैरायटीज़ है विच हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया अलोन, दैट इज़ अबाउट 200,000, ठीक है। राइस के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। इंडिया हैव रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कभी आप नॉर्थ ईस्ट जाके देखना तो आप ना सारा ही राइस के ऊपर फीड कर रहे हैं वो, जो जितने भी जो भी ऐसे एरिया जहाँ खूब सारा पानी होता है, इवन हरियाणा, यू कैन नॉट फॉरगेट हरियाणा, राइस प्रोडक्शन इज गुड देयर। अब जो राइस में एक वैरायटी आती है बासमती राइस। बासमती राइस स्पेशल है, महंगा भी आता है, दैट इज़ हैविंग डिस्टिंक्ट यूनिक एरोमा एंड दैट इज़ हैविंग डिस्टिंक्ट यूनिक फ्लेवर। जो बासमती राइस है, it is well known, basmati rice, it is very famous for unique distinct aroma। पर अगर आपको हाइपरग्लाइसेमिया से सफ़र करते हैं, आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपका राइस खाना बंद हो जाता है, राइट। गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड आप बाद में मिस करते हैं उन्हें। यूनिक डिस्ट्रिक्ट एरोमा एज वेल एज फ्लेवर, दिस इज़ अबाउट बासमती राइस। अब बासमती राइस की अगर मैं वैरायटीज़ की बात करूं, अबाउट 27 वैरायटी ऑफ बासमती राइस आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड दे आर ग्रोन इन इंडिया। इन बासमती राइस, ये स्टेटमेंट याद रखना, 27 वैरायटीज़ ऑफ बासमती राइस आर वेल डॉक्यूमेंटेड। तो इंडिया के अंदर जो टोटल वेराइटीज़ ऑफ राइस है वो बासमती की नहीं है, वो 200,000 है।
और वेराइटीज़ ऑफ राइस कितनी डॉक्यूमेंटेड है इंडिया के अंदर? 27। बासमती राइस की कितनी डॉक्यूमेंटेड है? 27। ये दो अलग अलग चीज़ है। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि अभी ना मैं कॉन्ट्रोवर्सीज बताने वाला हूँ बायो पेटेंट की, और जो पहला कॉन्ट्रोवर्सी पढ़ेंगे वो राइस का ही पढ़ेंगे। तो लेट अस डिस्कस द कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ बायो पेटेंट, और उसको बायो पायरेसी भी कहेंगे तो आगे चल के, कि अगर आप इलीगली किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको रिन्यू ना देकर, तो वो एक बायो पायरेसी हो जाएगा। तो कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटेड टू बायो पेटेंट, और 3 क्लासिकल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा बच्चों। एक एग्जाम्पल बताऊँगा राइस का, दूसरा एग्जाम्पल बताऊँगा टर्मरिक का, और तीसरा एग्जाम्पल बताऊँगा नीम का। जो पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे राइस का। तो राइस के बारे में ये तो आप अब तक समझ गए होंगे कि हमारा जो कंट्री है वो एज फार एज द वैराइटीज़ ऑफ राइस इज़ कंसर्न वी आर हैविंग लैक्स ऑफ वैराइटीज़, और बासमती की भी हमारे पास खूब सारे डॉक्यूमेंटेड थे। इवन बासमती राइस का जो रेफरेंस है वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी है। जितने भी आपके फोल्कलोर होते हैं उनके अंदर भी उसका रेफरेंसेस है। पोइट्री वगैरह में भी बासमती राइस का रेफरेंसेस है कि सेंचुरीज से हमारे कंट्री के अंदर बासमती राइस को उगाया जा रहा है। अब कंट्रोवर्सी पढ़ते हैं। पहला कंट्रोवर्सी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बासमती राइस का। इस कंट्रोवर्सी में ईयर वगैरह ज़रूर याद रख लेना। राइस की जो कंट्रोवर्सी है कब रिपोर्ट हुई थी? ईयर था 1997। इन सितंबर 1997 एक अमेरिकन कंपनी थी, उसका नाम था एक टेक्सास की कंपनी थी, उसका नाम था राइसटेक। अ टेक्सास कंपनी राइसटेक। अब राइसटेक वालों ने क्या किया, जो राइसटेक कंपनी है उन्होंने एक पेटेंट करा लिया, या दे वोन ए पेटेंट आई विल से, ऑन द बासमती राइस सेल लाइन एंड ग्रेन्स। दे गोट ए पेटेंट ऑन बासमती राइस लाइन्स एंड ग्रेन्स, कि भाई ये पर्टिकुलर जो बासमती की वैरायटी है उन पे सिर्फ हमारा हक है। अब कोई भी इन बासमती की वैरायटी को ग्रो करा रहा है तो एक मोटा अमाउंट हमें भी पे करे एज टैक्स आई विल से। तो टेक्सास कंपनी इन द ईयर 1997, द नेम ऑफ कंपनी वाज राइसटेक, दैट कंपनी वाज ऑफ टेक्सास, ठीक है। दे गॉट ए पेटेंट, दे वॉन ए पेटेंट ऑन बासमती राइस लाइन्स एज वेल एज ग्रेन्स। अब ये जो पेटेंट है इसने बासमती की जितने भी डिफरेंट वैरायटीज़ थी उनको तो सिक्योर कर ही लिया था। इस पेटेंट ने बासमती की सारी वैरायटीज़ को सिक्योर कर लिया था, और जितने भी आपके बासमती के जैसे राइस हैं या आपके पास जितने भी मेथड ऑफ ब्रीडिंग है या सिलेक्शन फॉर द मेथड ऑफ ब्रीडिंग है वो सब के सब उसमें आ जाते हैं। तो ये जो पेटेंट है इसमें बासमती लाइन्स के साथ साथ जो ब्रीडिंग मेथड थे, ब्रीडिंग मेथड फॉर प्रोडक्शन, वो सब आ जाते थे। तो एक तरीके से वो इलीगल हो जाता बाकी लोगों के लिए ऐसा कुछ करना। इज दैट क्लियर? अब जो राइसटेक है उसके जो मालिक है वो एक प्रिंस हुआ करते थे। द नेम वाज प्रिंस हैंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द नेम वाज प्रिंस हैंस एडम। हमें उनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, तो मेनली जितने भी कंट्रीज़ हैं, आई मीन टू से इंडिया, उन्होंने एक चैलेंज करना शुरू किया कि भाई ये जो पेटेंट है एकदम गलत है, और इंटरनेशनल मार्केट में एक आउटरीच वाला कंडीशन आ गया था। उनके ऊपर खूब सारे एलिगेशन लगने शुरू हो गए थे कि आपने बायो पायरेसी करना शुरू कर दिया है। तो फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया देयर आर सो मैनी एलिगेशंस विच हैज़ बीन मेड अगेंस्ट दैट प्रिंस हैंस एडम कि आपने ये एक बायो पायरेसी किया है, दिस इज़ नॉट लीगलाइज्ड। अब इसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ गया था इन द इंटरनेशनल मार्केट। देयर वाज ए डिप्लोमेटिक क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप, उन्होंने डराना शुरू कर दिया था एक्चुअली यूएस को, कि अगर आपने इस मसले को सॉल्व नहीं किया तो हम इस मैटर को लेके चले जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक। हम इस मैटर को लेके चले जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक, WTO। और एक ना आपके पास ट्रिप्स करके एक नॉर्म होते हैं। ट्रिप्स का मतलब होता है
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो भाई इंडियंस ने कहा कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे और आप उनसे कहेंगे कि आपने जो ट्रिप होते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, आपने उनका वायलेशन किया, आपने उनका उल्लंघन किया है, ठीक है, जिसकी वजह से यूएस की बदनामी हो सकती थी। लाइक यूएस के लिए बड़े ही शर्म वाली बात आ जाती। तो बाद में क्या हुआ, वॉलंटरली दोनों कंट्रीज़ के लोगों ने मिलके जो ये पेटेंट था उसको विड्रॉ करा लिया था। सो लेटर ऑन वॉलंटरली एंड ड्यू टू सर्टेन रिव्यू डिसीजन बाय यूएस पेटेंट ऑफिस द पेटेंट वाज रिवोक्ड। तो जो पहला क्लासिकल एग्जांपल आता है कंट्रोवर्सी में वो आता है राइस का। अब राइस में याद रख लेना कि भाई हमारे पास 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस है, बासमती की 27 वैरायटी हमारी वेल डॉक्यूमेंटेड है। हमारी कुछ वैरायटीज़ को चोरी कर लिया था यूएस की कंपनी, टेक्सास की कंपनी, टेक्सास आल्सो इन यूएस, राइस टेक ने, और उन्होंने बासमती राइस लाइन्स और ग्रेन को पेटेंट करा लिया था, ब्रीडिंग मेथड तक पेटेंट करा लिए थे उन्होंने। तो इंडियंस ने जाके उसको चैलेंज करना शुरू किया, उनको डराया कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कहेंगे कि आप ने जितने भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका वायलेशन किया है, आपकी थू हो जाएगी, आपको बड़ी शर्म आएगी। तो जितना भी यूएस पेटेंट ऑफिस है उन्होंने इस पेटेंट को रिव्यू किया और उसको रिवोक कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो आजकल आपको कोई भी बासमती राइस वगैरह खाने में या उगाने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। तो पहला केस हो गया आपका जो कंट्रोवर्शियल केस था, ठीक है बच्चों। दूसरा जो केस है वो टर्मरिक का है, दूसरा जो केस है वो टर्मरिक का है। अब टर्मरिक के बारे में हम जानते हैं कि भाई अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है और कोई भी आपके पास एड बॉक्स नहीं है तो मम्मा क्या करती हैं कि वो आप हल्दी वगैरह पीस के आपके ज़ख्मों के ऊपर लगा देगी, या आपको पेन रिलीवर के लिए एक बड़ा अच्छा काम करता है टर्मरिक। आप पढ़ते भी आओगे टर्मरिक के अंदर खूब सारे वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और खूब सारा एंटी कैंसर प्रोडक्ट भी होता है। तो ये तो हम ज़माने से करते आ रहे हैं, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम ये चीज़ करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं किसी साइंस ने हमें सिखाया है कि भाई जो टर्मरिक होता है उसके अंदर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, या टर्मरिक से आपका एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी मिलेगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। ये हमारा नॉलेज था। अब यूएस के पेटेंट ऑफिस में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को एक पेटेंट मिला था अबाउट द टर्मरिक। इट वाज इन May 1995। इन ईयर May 1995 US Patent Office granted a patent to University of Mississippi Medical Center। और ये जो पेटेंट था डेट वाज अबाउट द वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक। दिस पेटेंट वाज यूज ऑफ टर्मरिक in wound healing, got a patent for use of turmeric in wound healing। अब इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता था वो सुनिए। अगर आप यूएसए में रह रहे हैं, लकीली इसके इम्प्लीकेशन क्या थे कि अगर कोई भी इंडियन यूएसए के अंदर रह रहा है और वो अपने ज़ख्मों के ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा लेता है, या वो अपने बच्चे को हल्दी का दूध दे देता है जैसे कि उसके पूर्वजों ने इंडिया में दिया था, तो वो एग्जैक्टली इन्फ्रिंज कर रहा है, वो एग्जैक्टली एक कानून को तोड़ रहा है। पेटेंट के जो लॉज है वो उनका वायलेशन कर रहा है और उसको प्रोसिक्यूशन के लिए लेके जा सकता है, क्योंकि उसने विदाउट द परमिशन ऑफ दैट असाइनी दे हैव बीन यूजिंग टर्मरिक इन वुंड हीलिंग। तो मेनली आपको एक तरह का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप टर्मरिक को एज ए वुंड हीलिंग यूज़ कर रहे हैं, या जो भी टर्मरिक ये मेडिकल सेंटर बना रहा है, जो भी टर्मरिक ये मेडिकल सेंटर दे रहा है फॉर वुंड हीलिंग एंड फॉर डिफरेंट पर्पस, आपको वही यूज़ करना है। तो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी थी।
अब ये जो पेटेंट है इसको हटाने में क्रेडिट जाता है डॉक्टर R.A. मालसेकर को। डॉक्टर R.A. मासेलकर जो थे, डॉक्टर R.A. मासेलकर, हाँ उनका नाम वगैरह कई बार पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट वगैरह में आता है मासेलकर। तो जो डॉक्टर R.A. मासेलकर थे उन्होंने कई साल तक, ही वॉज ए इंडियन साइंटिस्ट, और उनका बहुत बड़ा रोल है इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवोक करने के लिए अगेंस्ट दिस पेटेंट। तो उन्होंने कई साल तक, तो नहीं शायद 4 महीने ही लगे थे, हाँ 4 महीने उन्होंने जब रिपोर्ट सबमिट किया तो उनकी रिपोर्ट सबमिट होने के 4 महीने के बाद ही ये एस्टेब्लिश हो गया था कि जो टर्मरिक का यूज़ है एज ए हीलिंग एजेंट इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में वेल नोन है, और इस पेटेंट को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो ही वाज इन्वॉल्व्ड इन रिवोकिंग दिस पेटेंट। अच्छा, एक वो वंदना शिवा वाला केस भी पढ़ो, नीम वाला पढ़ लेते हैं अब। तो पहला राइस का हो गया, दूसरा हो गया टर्मरिक का, और तीसरा हो गया नीम का। अच्छा, नीम के अंदर फंगिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। जो भी लोग आपका रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बचपन वगैरह में अगर उनको कुछ याद हो, चोट वगैरह लग जाती तो मदर वगैरह क्या करते, नीम को पीस के वहाँ पे लगा देते हैं। तो नीम के अंदर फंगिसाइडल प्रॉपर्टी है। आज के दिन में भी कुछ लोग नीम के पानी को थोड़े वार्म वाटर में नीम के पत्ते डाल के उससे नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का फंगिसाइडल काम करता है। तो ये कंट्रोवर्सी था, ये आया था 1996 में। तो नीम इज़ 1996, टर्मरिक 95 एंड राइस इज़ 97। अच्छा, नीम का डिस्कस करते हैं। तो मेनली हुआ क्या था कि आपका अगेन यूएस की एक कंपनी थी, उसने नीम की फंगिसाइडल प्रॉपर्टी को पेटेंट करा लिया था। तो वंदना शिवा थी इंडिया की, बाद में डॉक्टर अजय फड़के भी उनके साथ लग गए थे। शी वाज द वन जिन्होंने पेटेंट को चैलेंज किया था। पहले ये पेटेंट क्या था ये बता देता हूँ, उसके बाद किसने चैलेंज किया था वो बता देंगे। जो देयर वाज ए कंपनी ऑफ म्यूनिक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको एक पेटेंट मिला था नीम का, यूज़ ऑफ नीम, फंगिसाइडल यूज़ ऑफ नीम। दे गॉट अ पेटेंट फॉर फंगिसाइडल यूज़ ऑफ नीम। अच्छा, ये बड़ा वक्त लगा इसको हटने में। और वंदना शिवा और डॉक्टर अजय क्यों कह रहे हैं, फड़के, ये दो थे जिन्होंने चैलेंज किया था इस पेटेंट को। आई गेस 2005 में आके पेटेंट डिसॉल्व हुआ है। तो 2005 तक जितने भी आप अलग अलग पढ़ते ना, मार्गो वगैरह या अलग अलग साबुन आते थे, वो भी आपका उसी कंपनी के इन्वॉल्वमेंट में होंगे। तो फंगिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ नीम का जो पेटेंट हुआ था वो एक कंट्रोवर्सी रहा है। टर्मरिक का जो वुंड हीलिंग में यूज़ होता है उसका पेटेंट हुआ था, वो कंट्रोवर्सी रहा है। और बासमती सेल लाइन और ग्रेन्स को जो पेटेंट हुआ था वो कंट्रोवर्सी रहा है। ये 3 पेटेंट जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। तो डॉक्टर वंदना शिवा एंड डॉक्टर अजय फड़के, इन दोनों का नाम याद रख लेना। उनका रेफरेंस दिया जाता है इंडियन टेक्स्ट में। उन्होंने एक्चुअली रेफरेंस दिया था इंडियन टेक्स्ट का कि देखो हमारी किताबें पढ़ के देखो, इस नीम को तो हम जन्मों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो बच्चे, ये हो गए आपके कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। अब छोटा सा एक टॉपिक और रहता है, बायोपायरेसी। ये सारे बायोपायरेसी ही कर रहे थे। अगर आप किसी की चीज़ बिना उसकी इजाज़त के या बिना लॉज को फॉलो किए हुए यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पायरेसी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो चीज़ बायोलॉजिकल वर्ड के रिलेशन में है तो बायोपायरेसी कर रहे हैं। मूवी रिलीज़ होने के बाद जब कभी घर वाले उसका कैमरा रिकॉर्डेड वीडियो ले आते थे तो हम उसको बोलते हैं ये पायरेटेड सीडी है, राइट। तो ऐसी या सेकंड कॉपी जो होती है जिसमें जो कंपनीज वगैरह है उसका नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं, उसको हम पायरेटेड प्रोडक्ट कह देते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो सब कर रहे हैं विद रेफरेंस टू बायोलॉजिकल वर्ड, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे बायोपायरेसी। किसी भी सेट को फॉलो ना करके जो असाइनी है, जो इन्वेंटर है, उसकी इजाज़त के बिना, या उसको आप कोई भी जो अगर आपको एक अमाउंट पे करना है, वो अमाउंट पे किए बिना आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो बायोपायरेसी में आ जाता है। तो जब बायोपायरेसी को डिफ़ाइन करते हैं, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, दैट इज़ द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज when you have been not you use of bioresources by multinational companies, use of bioresources by multinational companies
and organization without proper authorization from the countries. Use of bioresources by multinational companies and organization without proper authorization. ऑथराइजेशन किससे चाहिए? उस मुल्क से चाहिए जहाँ से वो चीज़ बिलोंग करती है, फ्रॉम द कंट्री और फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट कंट्री और विदाउट प्रॉपर कंपनसेटरी अमाउंट. तो आई रिपीट, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न. फ्रॉम द कंट्रीज एंड people concerned or without paying them the compensatory amount or without paying them or without compensatory payment or without compensatory payment. तो अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी बायो रिसोर्स को यूज़ कर रही है बिना इजाज़त के, बिना ऑथराइजेशन के, बिना कंपनसेटरी पेमेंट दिए, तो उस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बायो पायरेसी. देखो, दो तरह के आपके पास ना नेशन हो गए हैं. जो आपके इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन है, वो फाइनेंशियली तो बहुत रिच है, पर उनके पास डाइवर्सिटी की कमी है, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज की कमी है. तो चाहे आप जितने भी आपके फाइनेंशियल रिच कंट्री है, अगर मैं यूएस की बात करूँ तो फाइनेंशियली बहुत रिच है, बट बायो रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है. जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो भी पूरा अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, आप इंडिया को रख ले जहाँ भी रखना है, मैं तो अफ्रीका के बारे में बात करूँगा. तो वी ऑल नो अफ्रीका बीइंग अंडर डेवलप्ड, इट इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ वेरी रिच इन ट्रेडिशनल नॉलेज related to that bioresources, as well as they know how to use herb, they know how to use certain plant as drug. तो जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है या फिर आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड की बात करूँ, वो भले ही फाइनेंशियली पुअर हो, पर उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी खूब सारी है. और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है. तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बायो रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को बायो पायरेसी कहते हैं. सो देयर हैज़ बीन अ ग्रेटर रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, बड़ा ही इनजस्टिस हो रहा है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया जा रहा है, और जो भी बेनिफिट शेयरिंग है वो नहीं हो रहा है. डेवलप कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में जो भी बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है. तो अलग अलग लॉ बनाए गए थे इस एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, अब बायो पायरेसी में ना एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कि कैसे किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री के बायो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़. वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक प्लांट होता है, उसका नाम होता है पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना. देयर इज़ ए प्लांट इन वेस्ट अफ्रीका. अफ्रीका के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो कितना गरीब देश है, राइट. देयर इज़ ए प्लांट पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना. तो जो पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना होता है, जो पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना होता है, इसके अंदर ना एक मॉलिक्यूल बनता है. इसके अंदर इसका जो प्रोडक्ट होता है, देयर इज़ ए प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट, और उस प्रोटीन का नाम होता है ब्रेजिन. कुछ अच्छे बच्चों के दिमाग में ये स्ट्राइक किया होगा कि क्लास 11th बायोमोलिक्यूल में सर ने इसका जिक्र तो किया था. ये जो ब्रेजिन होता है बच्चों, ये नॉर्मल शुगर से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है. इट इज़ अप्रोक्स 2000 टाइम्स स्वीटर देन नॉर्मल शुगर. अप्रोक्स 2000 टाइम्स स्वीटर देन नॉर्मल शुगर. ठीक है, इसका एक और अच्छा ये जो बेनिफिट होता है, ये एक लो कैलोरी फूड होता है. जो ब्रेजिन को आप यूज़ करते हैं एज ए स्वीट,
जो शुगर वगैरह उससे कैलोरीज खूब ज़्यादा आ जाती है। एडिशनली आप ब्रेजिल को यूज़ करते हैं एज ए लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट इज़ यूज्ड एज लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये जो गिफ्ट है ये किस कंट्री को मिला हुआ है? ये गिफ्ट मिला है वेस्ट अफ्रीका कंट्री को। यहाँ के जितने भी लोकल पीपल थे, जो लोकल लोग रहने वाले थे, वो इसके बारे में अच्छे से जानते थे, इसके बेनिफिट जानते थे। जो इसको बोलते हैं स्वीट बेरीज ऑफ द प्लांट। तो जो भी स्वीट बेरीज ऑफ द प्लांट थे उसके बेनिफिट वगैरह वो सेंचुरी से जानते आ रहे हैं। पर क्या हुआ कि जो यूएस के लोग हैं वो वहाँ पहुँच गए और यूएस में पेटेंट करा लिया ब्रेजिन को। बट ये बायोपायरेसी का केस बता रहा हूँ मैं, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह नहीं चल रही आज तक। इट वॉज पेटेंटेड, बट इट वॉज पेटेंटेड इन यूएसए। बढ़िया, यहाँ से प्लांट ले जाके अपने मेज़ प्लांट के अंदर वो जीन डाल दो, बोल दो देखो हमारे मेज़ तो मीठे हो गए हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ बायोपायरेसी हेयर। आप बायो रिसोर्स यूज़ कर रहे हो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। तो जो भी पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना है, जो जीन ब्रेजिन प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था, उस जीन को यूएसए वालों ने पेटेंट करा लिया। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो जीन कोड कर रहा है ब्रेजिन के लिए, उसको उन्होंने आइसोलेट किया, उसको सीक्वेंस किया और बाद में उसको पेटेंट करा लिया यूएसए वालों ने कि देखो हमने एक नया जीन डिस्कवर किया है। और बाद में एक प्रपोजल तैयार किया कि इस जीन को हम ट्रांसफ़र करते हैं मेज़ प्लांट में। जो ब्रेजिन का जीन है, इट वाज बीन ट्रांसफर्ड टू मेज़ प्लांट। यूएसए में जो मेज़ प्लांट है उसके अंदर उन्होंने कौन सा जीन ट्रांसफर, मतलब वो पेटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया कि इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन द मेज़ प्लांट। और जो मेज़ के कर्नल्स होंगे वो स्वीट हो जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट ऑफ मेज़ प्लांट होगा डेट वुड बी स्वीट इन नेचर। एंड व्हाई इट इज स्वीट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रेजिन। देखा कितना कमाल का दिमाग है। तो वेस्ट अफ्रीका एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना प्रोटीन बनाता है ब्रेजिन, और वो वहाँ के लोकल लोग जानते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करता है, बड़े काम की चीज़ है। यूएस वालों ने उस जीन को आइसोलेट किया, सीक्वेंस किया और पेटेंट करा लिया। और बाद में प्रपोज किया कि इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं मेज़ प्लांट के अंदर, और जो मेज़ कर्नल्स होंगे दे वुड बी एक्सप्रेसिंग, दिस जीन वुड बी एक्सप्रेसिंग इन मेज़ कर्नल एंड दे वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ स्वीट। तो ये जो कर्नल्स हैं दे वुड बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्रेजिन्स। अब ये सब होने के बाद सबसे बड़ा लॉस किसका होता? अगर ये सब लेट्स से फॉर्चुनेटली बायोपायरेसी पकड़ी गई तो ये सब नहीं हुआ था। अगर ये सब डेवलपमेंट हो जाता तो देयर वाज सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर। जैसे इंडिया एक लार्ज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ शुगर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर का इंपोर्टर होता है। तो अगर यूएसए के अंदर ये ब्रेजिन बनना शुरू हो जाता तो कौन इंडियन शुगर खाता? तो डैट इज़ ऑल अबाउट यूर बायोपायरेसी। तो बच्चों, बायो पेटेंट क्लियर हुआ क्या होता है, बायो एथिक्स क्लियर क्या हुआ क्या होता है, और बायोपायरेसी क्लियर हो गया। अब हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन पार्लियामेंट ने कुछ दिन पहले ही सेकंड अमेंडमेंट किया है इन इंडियन पेटेंट बिल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 2-3 साल पहले कि इंडियन पेटेंट बिल के अंदर कौन सा अमेंडमेंट किया है इंडियन पार्लियामेंट ने। इंडियन पेटेंट बिल, what I am writing, that Indian patent bill got second amendment by Parliament of India recently। तो सवाल पूछा गया था इंडियन पेटेंट बिल के अंदर कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, तो आप याद रखेंगे सेकंड अमेंडमेंट। और जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारा इंडियन का नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अंदर जो भी कोई वायलेशन करता है उन चीज़ों को यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया गया है। तो टेकिंग ऑल द सच सीरियस इश्यूज अंडर कंसिडरेशन एंड डेट आल्सो इंक्लूड डेट पेटेंट टर्म एमरजेंसी, किस पेटेंट को कितने दिनों तक देना चाहिए, प्रोविज़न क्या होनी चाहिए पेटेंट के लिए, रिसर्च एरिया में क्या पेटेंटिंग होना चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो इंडियन पेटेंट बिल क्या क्या कवर करता है? डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, रिसर्च एरिया, जो भी आपके पास वो ड्यूरेशन है जिसके लिए हम जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम पेटेंट ड्यूरेशन, या जो भी आपके पास
डिफरेंट प्रोविजन एंड इनिशिएटिव्स हैं, खैर वो नहीं पूछेगा आपका। तो ये हो गया बच्चों बायोपायरेसी के बारे में। एंड हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायो पेटेंट, बायोपायरेसी और बायो एथिक्स का डेफिनेशन वगैरह पूछता है। ये जो कहानियाँ वगैरह बताई हैं ये तो नॉलेज पर्पज़ के लिए। इसमें वो स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है बासमती राइस वाला, 200,000 जो है वो डिफरेंट राइस है, वो बासमती नहीं है। और 27 बासमती की जो अलग अलग वैराइटीज़ है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्ट्रावर्सीज़ में 3 याद रख लेना। अगर ब्रेजिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो पेंटा डाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना का चीज़ याद रख लेना। So you are having a test on Sunday and it's Wednesday today, so you are still having Thursday, Friday and Saturday for your preparation. Do well for your test, solve all the questions. 2 असाइनमेंट बायोटेक के दिए हैं वो कर लेना। लास्ट ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कहाँ से कितना वेटेज आता है। तो जो ज़्यादा चैप्टर का वेटेज हो उस चैप्टर को अच्छे से करना है। एंड यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। So wish you good luck, take care, class is dismissed.